Hello and welcome back to Sister Science Academy. Today we are going to start a new topic of standard 10, that is magnetic effect of current. So let me write the name of the chapter first. That is the magnetic effect of current. In the previous chapter of standard 10, we have studied about the current, charge, current, electricity, and the effects of electric current. Out of those effects, this is another effect of current, that is magnetic effect. So let me tell you that what is magnetic effect. Magnetic effect means that any substance which has a directive or attractive property. Any substance, let's write the definitions of the magnet. Let me start with that only. That what is magnet? Magnet is a substance that has attractive or directive property, which has directive property. I'll explain each and every points of magnet, from where the word magnet has derived, and what are the different magnetic effects of current. So let's begin with the different force which is present in the nature. In the second line, we have studied about the gravitational force, isn't it? Whenever the total force is dependent upon the mass, means suppose this is some mass which is being attracted by the mass earth, then that force of attraction is known as what? Gravitational force. That is what? Gravitational force. That we all know that in the nature every party has a property, every particle has a property to attract each other. That is what? Gravitational force. Secondly, the force that we have studied is what? The force of attraction between the two charged particles. If there are two charged particles, then it has a property that it can attract each other, isn't it? And that is what the current force you can, which is being derived by the Coulomb's law, isn't it? In which all the particles, all the charged particles has a property that it is being attracted by the different forces, isn't it? The gravitational force is due to the gravitational field, and the Coulomb's force is due to the electric field, is due to the what? Electric field, isn't it? Here you can see that charges are moving in a conductor, where the whole sum of the total net charge is what? 0. Okay. Now the third that has been come into the existence is that suppose if this is the conductor where the charges are moving like this and the net sum is what? 0. In front of it any charge that is that charge is what? Q, is moving in a straight direction. Apart from that is not in contact with each other. Due to the movement, this will be get attracted to this, means it will have a directive property, and you can see that it has been attracted towards that very moving charge, isn't it? Then that is what? Magnetic field. That field is known as what? Magnetic field, which comes into the existence. Okay, let me clear you a few more things about the magnetic field. That this word magnet has been introduced from the word magnesium, which is actually a lodestone. It's a what? Lodestone. Which is made up of ore, which is known as what? Magnetite. Magnetite ore, and firstly it is being found in the somewhere in the Asia Magnesium. Okay. Now more things about the magnet, that it is being first seen
by the Ocean scientist Oersted. His name is what? Christian Oersted. Actually, he was not doing the work on the magnetic field, he was doing work on current electricity, and by default you can say he has seen that. What he has seen, that he was working on this. उन्होंने एक सर्किट बना के रखा था और उस सर्किट पे उन्होंने चेक करा that it was connected with the key along with the battery. Okay, the current was flowing और जिस टेबल पे वो कंडक्टर को रखे हुए थे वहीं पे कहीं पे एक कंपास रखा हुआ. There was a compass. Okay, and in that very compass he saw some deflections when the current was moving from south to north direction, or you can say from north to south direction. He saw the deflection in the east direction. Okay, he suddenly noticed that something is happening into the compass whenever the current is flowing. He again saw that. He again saw the same thing happening. Now what he did, he just changed the polarity from positive to negative and negative to positive. Means he reversed the direction of the current. On reversing the direction of the current, he saw that now the current is moving from south to north direction, but now the deflection has moved towards west. From where a rule has been made, that is what Snow rule means. South to north, when the current will flow from south to north, then the deflection will be over west direction. That is what the Snow rule which is being made by Oersted. वहीं से वो फेमस हुए थे इसी एक्सपेरिमेंट के लिए. हालांकि वो इस पे वर्क नहीं कर रहे. He was not working on magnetic field. He was working on what? Current electricity. इसलिए इसमें उनको ज़्यादा कुछ किए नहीं. सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट के लिए उनको जो क्रेडिट है it goes to him that he has first find the magnetic effect of what? Current. Current का जो magnetic effect है वो उन्होंने चेक किया. तो मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है? मैग्नेट का प्रॉपर्टी ये है that suppose this is a bar magnet, this is north and this is south pole. तो इसके सामने अगर कोई भी आयरन पार्टिकल आता है तो it has a property that it can attract. वो उसको क्या कर सकता है? Attract. Understood? और ये इसका अट्रैक्टिव का जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा रहेगी जरूरी नहीं है. मानकर चलो कि अगर ये यहाँ है तो इसका जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी वो नहीं है. इसको समझने के एक और तरीके से समझते हैं. लाइक वाइज सपोज योर सिस्टर यूज्ड टू अप्लाई सम चमेली का तेल, ओके, ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड. तो आप काफ़ी यूज्ड टू हो जाते हैं कि आपके सिस्टर वही वो तेल यूज़ करती है. तो अब जैसे मान लीजिए अगर उसकी शादी हो गई है और वो फिर वो कभी दोबारा आपके घर पे आती है और आपसे नहीं देख रहे, फिर भी आप जैसे रूम में एंटर करने वाले होते हो तो आपको एक फ्रैग्रेंस आता है. एक मान लीजिए अगर ये सिस्टर है तो उसका एक फ्रैग्रेंस, बिकॉज वो अपना एक फ्रैग्रेंस बना के रखती है, इज इट इट, और आप उसका महसूस कर लेते हैं. यूज टू फेल्ट इट दैट हाँ माई सिस्टर इज हियर, वो आ चुकी, इज इट इट. फिर आप रूम में आकर उसको बोलते हैं कि क्या है तुम चमेली का तेल लगा के रखती हो, चलो ये तुम दूसरे रूम में चले जाओ, ठीक है. तो वो गुस्सा होकर दूसरे रूम में चले जाते. लेकिन क्या उसके दूसरे रूम में जाने से वो जो फ्रैग्रेंस है वो खत्म हो जाता है? हाँ खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद थोड़ी देर तक वो इफेक्ट वहाँ पे रहता है, वो फ्रैग्रेंस वहाँ पे रहता है. तो वही सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट में होता है कि इसका इफेक्ट का एक एरिया होता है जहाँ तक उससे आप फेल्ट कर सकते हैं. द स्पेस और द रीजन वेयर द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट एंड दैट एरिया इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. Once again the definition I am telling you, the space or the region where the magnetic influence can be felt. Okay, और ये बात मैंने आपको बताया that अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं तो वहाँ पे फ्रैग्रेंस थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स के लिए
वहाँ पे रहता ही। अंडरस्टूड? इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। लाइकवाइज टेल यू इन कॉमन कि अगर वो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है तो आयरन पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकता है। अगर आयरन पार्टिकल मैग्नेटिक बार मैग्नेट हो गया या फिर मैग्नेट कंपास हो गया, मैग्नेटिक नीडल अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है या उससे रब हो जाता है तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें भी आ जाती है। It also gains some of its property and it also bears the property either of attraction or repulse. तो attract और repulse करने का प्रॉपर्टी उसमें भी आ जाता है। Understood? तो चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा और मैग्नेटिक नीडल्स के बारे में। We were discussing about the magnetic field, the space or the region where the magnetic influence can be felt. Okay. Likewise, magnetic needle क्या करता है? Magnetic needle वो पूरी तरीके से मैग्नेट से रब रहता है, इसलिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है कि अगर वो उसके सामने बार मैग्नेट को अगर आप लेकर आते हैं, मैग्नेटिक नीडल, लेट मी राइट दैट फर्स्ट, मैग्नेटिक नीडल, ये है आपका मैग्नेटिक नीडल, इससे ठीक है। अगर आप इसके सामने कोई भी बार मैग्नेट लेकर आते हो, ठीक है, ये बार ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो इसका साउथ पोर्शन इसके नॉर्थ की तरफ आता है और इसका नॉर्थ वाला पोर्शन इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसको घुमा देंगे तो ये वाला सामने आएगा, ये वाला। अंडरस्टूड? तो ये मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। कुछ और बातें हम लोग करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए हम आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, हम आपको पूरा ब्रीफ सिर्फ मैग्नेट के बारे में ना बता के हम आपको रिलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नॉट ओनली द मैग्नेट। सिर्फ आपको मैग्नेट के बारे में नहीं जानना है, आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी जानना है। तो अगर आपको इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानना है तो मैग्नेट के बारे में भी जानना है, और उससे इफेक्ट करंट से कैसे बनता है वो भी आपको समझना है, ठीक। सो कम बैक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। मान लेते हैं दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई चार्ज यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है, इफ एनी चार्ज q इज मूविंग इट लाइक दिस, देन वो क्या करेगा, वो उसको अलाइन कर देता है, वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे फोर्स अप्लाई करके उसको अलाइन कर देता है टुवर्ड्स इट्स लाइन, वो खुद के लाइन की तरफ उसको क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। अंडरस्टूड? मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से चार्ज मूव कर रहा है तो वो चार्ज के डायरेक्शन को चेंज करेगा, यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे। अंडरस्टूड? यहाँ पे हर जगह जो उसका वेलोसिटी होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे नो एक्सीलरेशन रहेगा, या फिर जीरो लिख लो, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। जहाँ पे आओ तो ये एक बार लाइन अलाइन होने के बाद इसका एक्सीलरेशन हमेशा इंक्रीज करते रहता है, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाता है, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको एक कॉइल के रूप में मूव करवाने शुरू कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन करके उसको एक्सेलरेट करते रहता है कंटीन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ दैट वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अपने एरिया पे अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ और हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, कैसे होता है, हाउ इट मूव्स, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको जानने की कोशिश करें।
Okay, suppose here is a magnet, bar magnet that is north south. अब इसका डायरेक्शन कहाँ से है और कहाँ से नहीं है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करें. So let's understand that कंपास नीडल क्या करता है. कंपास नीडल को अगर आप जहाँ पर रख देते हैं वो उसके हिसाब से अलाइन कर रहा है, इज इट इट. तो वैसे ही अगर आप मैग्नेटिक कंपास नीडल को यहाँ पर रखेंगे तो ये इसका डायरेक्शन इधर शो करेगा. ठीक है, नॉर्थ से दूर जाएगा उसका डायरेक्शन ऐसा शो करेगा. यहाँ रखेंगे इट विल शो इट लाइक दिस. व्हेन यू विल कीप इट ओवर हियर इट विल शो इट लाइक दिस. हियर इट विल शो इट लाइक दिस. हियर इट विल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ये इसका डायरेक्शन. अंडरस्टूड. ये पता कैसे चला, हम लोग को जहाँ पे वो नीडल हमको उसका डिफ्लेक्शन दिखा, हम वहाँ पे पेन से वहाँ पे नोटेड डाउन कर लेंगे. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर मिलेगा. और ये कैसा मिल रहा देख लो, कर्व लाइन स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है, और इसको मैंने एक नाम दे दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कर्व लाइंस है. तो दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन हो जाएगा द कर्व पाथ अलोंग व्हिच द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स. एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है that it is a closed continuous curve path along which the magnetic effect can be felt. Once again, it is a closed continuous curve path where the magnetic influence can be felt. बुक में दिया हुआ है आयरन फिलिंग्स के साथ, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऐसे क्यों दिया है. फिलहाल तो आप मैग्नेटिक कंपास में के थ्रू ये समझ रहे हैं. ठीक है, एज वेल एज वन मोर थिंग यू कैन सी दैट यहाँ से इसका एरो बाहर की ओर जाते हुए दिख रहा है. मतलब नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं. फ्रॉम द नॉर्थ पोल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एमर्जेस आउट एंड फ्रॉम द साउथ पोल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गेट इनसाइड. ये इसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, अगर कुछ और बात करेंगे, अगर आपसे पूछें कि मैग्नेट का कौन सी जगह पे उसका प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा रहता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, तो ये आपको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एरिया बिल्ड करना होगा. एक एरिया यहाँ पे बिल्ड कर दे, एक एरिया यहाँ पे बिल्ड कर दे, यहाँ पे बिल्ड कर दे. यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है. तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा. So near the poles the magnetic field lines will be stronger, and as far you go from the poles the lesser magnetic effect you will feel. Understood? This is the point. Okay, now more thing that magnetic field lines is directed from the north pole to the south pole outside the magnet, that we have discussed. The magnetic field line is a closed continuous curve path, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. सॉरी, the magnetic field lines are crowded near the pole, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ठीक है, now the last point that is very much important, that the magnetic field lines will never intersect each other. The magnetic field lines will never intersect each other. If they will do so, they will have two directions which is not. Once again, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते. अगर वो दो दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब हर एक पोल के लिए उसके 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, which is not possible. ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखेंगे. One more thing, that the tangent drawn at any point gives the direction of the magnetic field. The tangent drawn, इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, यही इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है. द टेंजेंट एट द पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, तो क्या क्या आपको पता चला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में? दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एमर्जेस इनसाइड फ्रॉम द साउथ पोल. A closed continuous curve gives the magnetic field lines. Okay, the tangent at the point gives the direction of the magnetic field. The strength of the magnetic field
field is nearer at the pole is the most and weaker at far from it. Understood? And the magnetic field lines will never intersect each other. ये वो points हैं जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ लूप, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और बहुत सारे हैं जो कि टोटली बेस्ड होंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. Understood? So that's it for today. Thank you.